Welcome to Pram Classes channel. Friends, we will know the one other theory of media or communication. The normative theory is main theories of media. The today's theory is libertarian theory of media or libertarian media theory. Friends, this is the one of the normative theories of media. Friends, this theory originally came from the libertarian thoughts from 16th century in Europe, and the libertarian thoughts against the authoritarian theorists, because authoritarian thoughts or theorists are against the freedom of media or communication, while on the other hand the libertarian theory says, or this theory advocacy the free press in country, which is necessary in the development of for the development of public and democracy. Friends, this theory sees that people are enough to find and judge good ideas from the bad. Friends, this theory says, listen carefully. What says this theory? This theory says that people are rational and their rational thoughts lead them to think about what is good and what is bad. This theory, this libertarian theory, favors the right to information of a citizen in democracy, friends. In other hand, the authoritarian theory is in favor of control the media by bureaucrats or government elites. Friends, if the media will free, then what is the benefit? Friends, first benefit is that if media will free or without control, the real thing will reveal from the society to the society. The truth will come out. Friends, tied in chain, the media will not go for good work. And we know that if the media is free of democracy, then that democracy is on the way of development. Friends, there are many and various implements to free the media in favor of free press. Friends, there are many strengths which are in favor of libertarian media theory. First of all, if media will free, our right to information will be safeguarded, and we will use our right to information. Second is, the real thing will reveal from the society to the society. The truth will come out in front of people. There are many examples like Tahelka,
in India, in Indian democracy, not in other countries. In other countries, we see that media is deaf and dumb. He has not right to say or say against government if he is wrong. Then he is not right to say against him. Friends, this theory say that if media will free, democracy will develop. The development will be on the way, on the direction, on the right direction in a democracy. But there are many limitations or weakness, because if media will not controlled, then yellow journalism and paid news will burn out, and the situation will worst. Friends, if they should, therefore, there are some controls, or there should ethics which should be followed by media or communication. Friends, today's theory told us that what is the benefit of libertarian theory and what is the strength of this theory. Friends, there are three questions comes from this theory. First is, from where this theory came? This theory came out from Europe in 16th century, right? Then libertarian theory favors to whom? This theory favors the right to information, not control the media. Friends, now we will know this theory in Hindi also. Friends, before I start the theory in Hindi, I want to say that if you did not press the bell icon or subscribe button, you should do that. You should press the bell icon and subscribe the channel so that you can know every new theory, every new matter of media, about the media. Friends, in Hindi we know, दोस्तों, यह जो लिबर्टेरियन थ्योरी है अर्थात उदारवादी सिद्धांत है, वह एक नॉर्मेटिव थ्योरी है मीडिया की। और दोस्तों, यह कहां से आई? यह यूरोप से आई 16वीं शताब्दी में। और दोस्तों, ये क्या है? यह वह थ्योरी है जो कि अधिनायकवादी सिद्धांत की आलोचना करता है, उसके विरोध में है। क्योंकि वो अधिनायकवादी जो सिद्धांत है ना, वो मीडिया पर नियंत्रण की बात करता है और यह मीडिया को स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। दोस्तों, इसके अलावा वह यह कहता है, यह थ्योरी यह कहती है, सिद्धांत यह कहता है, इस सिद्धांत का मानना है कि हर आदमी में इतना दिमाग है कि वो क्या अच्छा और क्या बुरा है वो पहचान सके और अपना निर्णय खुद ले सके। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता कुछ भी, या उसका दिमाग है खुद का कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या ग्रहण करना और क्या नहीं करना है। दोस्तों, यह जो सिद्धांत है ना, वह हमारे सूचना के अधिकार का भी वकालत करने वाला है। यह वह वकील है जो हमें सूचना का अधिकार देने की बात करता है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होगा ना, आजाद होगा, वही विकास की बात की जाएगी। हमारे कई पड़ोसी देश हैं, वहां पे मीडिया स्वतंत्र नहीं है,
गला घोंट दिया गया उनका। तो आप देखते भी होंगे कि वहां विकास किस पटरी पे चल रहा है दोस्तों, विकास मर सा गया वहां पे। क्योंकि दोस्तों यदि मीडिया स्वतंत्र नहीं हुआ तो वो किसकी हत्या चढ़ जाएगा, सरकारी नौकरशाहों के, उनकी भाषा में बात करेगा, जो चाहेंगे वो बात करेगा। पर यदि स्वतंत्र है तो लोगों के फेवर की बात करेगा, लोगों के जो काम की बात है वो करेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसे प्रमुख बनाती है, जो इसके फायदे क्या हैं। पहला ये है, यदि मीडिया स्वतंत्र हुआ तो वो समाज को असलियत दिखा पाएगा। दूसरा, यह हमारे सूचना का अधिकार का वकालत करने वाला बनेगा, वकील बनेगा हमारा, जो कि सूचना के अधिकार की बात करेगा। और अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण, वो ये है कि यदि मीडिया कंट्रोल्ड में हुआ तो क्या होगा, हमारी सरकारें हैं, हमारी जो सत्ताएं हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं रहेगी, वो मनमानी करने लग जाएगी। हमने सेंसरशिप के दौरान देखा भी है, कंट्रोल्ड हुआ मीडिया तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने चाहा वो बढ़ाया, बाकी का सारा दबा दिया गया। लेकिन दोस्तों इसकी भी वीकनेस भी है, कुछ वीकनेस ये है दोस्तों, वीकनेस तो बहुत सी है। क्योंकि देखिए हर चीज के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। इसका भी एक अच्छा और एक बुरा है। बुरा यह है कि यदि इसको कंट्रोल में नहीं रखा गया तो पीठ पत्रकारिता और मूल्य आधारित पेड न्यूज जो है उसको पनपने में देरी नहीं लगेगी, या पेशा बन जाएगा मीडिया, वो जो सेवा है ना, समाज सेवा, वो पेशा बनते हुए देर नहीं लगेगी। और दोस्तों इसे नकेल कसने के लिए कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कुछ नैतिकताएं या उनके मापदंड या मानदंड तय कर देने चाहिए कि यह मानदंड है, इससे बाहर निकलने वाले मीडिया पर कंट्रोल किया जाएगा, न कि सभी को कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों यदि फ्री होगा ना मीडिया तो वो भी स्वच्छंद हवा में श्वास ले पाएगा और हमें भी श्वास लेने की आजादी प्रदान करेगा। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक बंद पिंजरे में तोता है, उसके आगे आपने सोने की कटोरी में भी यदि वो रख दिया ना, चांदी के जो दाने रख दिए या कुछ भी रख दिया, उसके फेवरेट चीज रख दी, तो भी वो नहीं खाएगा और तड़प तड़प के मर जाएगा। बजाय इसके कि यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो जिंदा रह जाएगा बिना खाए पिए, क्योंकि वह स्वच्छंद है, उड़ने का आदि है, वो अपने मन का मालिक है वो। तो दोस्तों यदि मीडिया मन का मालिक हुआ तो सत्यताएं हमारे सामने आएगी, और सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात करता आया हूं वो परिलक्षित होगी हमारे आम जीवन के अंदर। तो दोस्तों आज आपने जाना कि ये लिबर्टेरियन थ्योरी क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उदारवादी सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसी ही रोचक जानकारियां मीडिया से संबंधित जो कि आपके यूजीसी नेट, एनटीए नेट, पीआरओ, सीयूईटी और बीजेएमसी और एमजेएमसी में बहुत ज्यादा महत्व रखती है, ये सारी चीजें परम क्लास से लेकर आता रहा है आपके सामने, और लेकर आता भी रहेगा, और लेकर आ रहा है। लेकिन ये आपको कैसे पता लगेगा, जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको स्वप्न तो आएगा नहीं। तो क्या करेगा ये, जैसे आपने बेल आइकन दबा रखा है ना, तो ये आपको इंगित करता रहेगा, आपको जगाता रहेगा, आपको अवेयर करता रहेगा कि नया वीडियो आ गया है, और चलें देखिए परम क्लासेज क्या बात कर रहा है, क्या क्लास है आज। तो दोस्तों अपना प्यार स्नेह है ऐसे लुटाते रहिएगा, और कमेंट में डालते रहिएगा जो आपको जानना चाहते हैं, जो आप नया टॉपिक जानना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन वादा है ये परम क्लासेज चैनल का हमेशा की तरह कि वह आपकी आशाओं पे खरा उतरेगा, और आप जो चाहते हैं ना वो आपके सामने लेकर आएगा। तब तक देखते रहिएगा परम क्लासेज चैनल, जब तक हम कल आपके सामने नया टॉपिक लेकर नहीं आ जाते। इसी समय इसी टाइम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।